ओके सो लास्ट टाइम भी हम ये बात कर रहे थे कि डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को मॉडल करने के लिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं. वी हैव exponential model which is based on the actual IV characteristic of the diode. I is equal to IS exponential of V by VT and hence is the most accurate one. The constant voltage drop model where we model the voltage across the diode as just as a fixed voltage of 0.7 volts, the ideal diode model and the small signal model. So let's start with the exponential model और फिर बारी बारी सारों को देखते जाते हैं. So exponential model से start लेते हैं. So exponential model as the name indicates is based on the exponential characteristic of the diode. I is equal to IS exponential of V by VT. And since this is the actual relation that हाँ जी कोई क्वेश्चन है यार, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक को म्यूट कर दें. So exponential model is based on the actual IV relation of the diode. So therefore it provides the most accurate description of the diode operation. However, it is the most difficult to use क्योंकि इसमें आपको exponential involved है. So we get non-linear relations. So as a consequence, exponential model is the most difficult to use. So exponential model का जो plus point है, जो benefit है वो ये है कि it is the most accurate one. And जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज़. So exponential model is based on the actual IV relation of the diode. I is equal to IS exponential of V by VT. So let's take a look at this basic circuit and let's see कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे. So exponential model को अप्लाई करने के लिए we need two equations. One is the diode equation जो कि actually given है हर डायोड के लिए ये इक्वेशन होगी. So this is called diode equation. And the second is the circuit equation. और सर्किट इक्वेशन आप किस तरह निकालेंगे, गिवन सर्किट जो भी होगा उस पे उसकी आप एनालिसिस करेंगे and you will get an equation in terms of VD and ID and that will call the circuit equation. So यहाँ पर चूंकि इस सर्किट में गिवन सर्किट में आप देख सकते हैं कि डायोड वोल्टेज को हम VD कह रहे हैं और डायोड के थ्रू करंट को हम ID कह रहे हैं. सो डायोड इक्वेशन को हम रीराइट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ID and VD. So ID is equal to IS exponential of VD divided by VT. So this is our diode equation. Circuit equation को निकालने के लिए we will use the basic laws, Ohm's law, KCL, KVL, and analyze the given circuit and determine an equation in terms of this VD and ID. So by Ohm's law यहाँ पर voltage की polarity इस तरह होनी चाहिए, ये VDD है and this polarity is like this. So by KVL you can see that VDD must be equal to ID R plus VD. So we can rewrite this equation as ID is equal to VDD minus VD divided by R. So this is the circuit equation. So ये आपके पास circuit equation आ गई. So these are the two equations that are required to apply the exponential model and solve the problem in this way. So आपको डायोड इक्वेशन चाहिए ID is equal to IS exponential of VD by VT and आपको सर्किट इक्वेशन चाहिए जो कि इस केस में आपके पास आ गई है ID is equal to VDD minus VD divided by R जो कि यहाँ पर हमने KVL से निकाल ली है. जस्ट आप ओम्स लॉ से भी निकाल सकते थे. अगर आप देखें तो ये नोड वोल्टेज जो है VDD है एंड दिस नोड वोल्टेज इज VD. तो अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, एक आपके पास डायोड इक्वेशन है, एक आपके पास सर्किट इक्वेशन है. और लेट्स से कि आपको टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आप बात कर रहे हैं तो VT आपके पास 25 मिली वोल्ट हो गया एंड IS लेट्स से आपको गिवन है, VDD आपको गिवन है, R आपको गिवन है. तो देन यू हैव टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स. So we will have two equations in two unknowns here. So these are the two equations. ID is equal to IS exponential of VD by VT, which is called the diode equation, and ID is equal to VDD minus VT divided by R, which is the circuit equation. So let's say हमें IS पता है, हमें VDD पता है, हमें R पता है, तो कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं? आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करें? दो इक्वेशंस आ गई, दो आपके पास अननोन है VD और ID. VDD आपको पता है, R आपको पता है,
IS आपको पता है, VT आपको पता है, तो आगे किस तरह से बढ़ें, किस तरह सोल्यूशन निकालें? जी, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, सोल्यूशन निकल आना चाहिए, क्या ख्याल है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप हियर? सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों को। सो लेट्स से कि हम आईडी को एलिमिनेट कर देते हैं, जो हम टिपिकली पहले भी किया करते थे। आई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ वी डी बाई वी टी इज इक्वल टू वी डी डी माइनस वी टी बाई आर। अब सिंस हमें आई एस पता है, वी टी पता है, आर पता है, वी डी डी पता है, तो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट वन वेरिएबल वी डी। तो अब नेक्स्ट कैसे करें, वी डी की वैल्यू कैसे निकालें? वी डी इज द लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में आ रही है, राइट हैंड साइड पे आपके पास वैसे आ रही है वी डी। सो आगे क्या करें, वी डी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? सो यू कैन सी कि सिचुएशन डिफरेंट है, राइट? पहले आपके पास इस तरह एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व होता था, आप जस्ट वी डी की टर्म्स को कलेक्ट कर लिया करते थे एंड यू गेट द रिजल्ट। तो जो इक्वेशंस आप पहले यूज़ किया करते थे दे वर लीनियर इक्वेशंस, एंड यू अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू कलेक्ट ऑल द कोफिशिएंट्स, एक साइड पे ले जाते थे उनको, एक साइड पे रीअरेंज कर लेते थे एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस नॉन लिनियरिटी you are unable to collect the variable vd and determine the final result. So this is different। जो आप नॉर्मली मेथड पढ़ा करते थे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड था या गॉस एलिमिनेशन थी या क्रेमर्स रूल था, all those methods were valid for linear equations. Here we have a non-linear equation, so because of this non-linearity involved, we are unable to collect vd on one side and determine an expression. So we need some new methodology to find the final solution. So we have two methods available to us. One is called the graphical method and the other one is the iterative method. So इन दो equations को solve करने के लिए हम दो तरीके हैं जिनको भी हम देखेंगे, graphical analysis और iterative analysis. So let's first start with graphical analysis. जी, ये सब लोग देख सकते हैं ना कि इसको आप उस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते जिस तरह पहले यूज टू हैं, right? Because of this exponential you cannot collect vd on one side and determine an expression। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग लेंगे तो एक साइड पे नेचुरल लॉग आ जाएगा, दूसरी साइड पे vd रह जाएगा, तो स्टिल आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसमें आप vd को सेपरेट कर इस तरीके से नहीं कर सकते। तो जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स थे, क्रेमर्स रूल हो गया, गॉस एलिमिनेशन हो गया, दोज आर नॉट एप्लीकेबल हियर। सो वी नीड न्यू मेथड्स एंड दीज न्यू मेथड्स आर ग्राफिकल एनालिसिस एंड आइटरेटिव एनालिसिस, जिनको हम देखेंगे। सो एक्सपोनेंशियल मॉडल को जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको यहाँ ग्राफिकल एनालिसिस यूज़ करनी पड़ती है, यहाँ आपको आइटरेटिव एनालिसिस यूज़ करनी पड़ती है टू रीच एट द फाइनल रिजल्ट्स। सो लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम with exponential model using graphical analysis. So basic idea is uh, quite simple. You need to plot these two equations onto the same IV plane, and the point of intersection will give you the solution, because the point of intersection is the only point that satisfy both the equations. So इस केस में सेम IV प्लेन के ऊपर आप दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है, दिस इज बेसिकली द सर्किट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं वी कैन री राइट इट एज -1 बाय आर वी डी प्लस वी डी डी बाय आर। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है उसके साथ आप कंपेयर करें तो m इज द स्लोप इज -1 बाय आर हेयर and c the y-intercept point is vdd by r. So this is the circuit equation। circuit equation तो आपने readily plot कर ली, पेपर पेंसिल पे भी आप plot कर सकते हैं because it is just a straight line। जो डायोड की इक्वेशन है वो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, एंड ऑब्वियसली इसको प्लॉट करने के लिए यू नीड हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर प्रोग्राम लाइक ऑक्टेव और मैटलैब। सो अगर आप सेम आईवी प्लेन के ऊपर यूजिंग ऑक्टेव या मैटलैब के थ्रू आप प्लॉट कर दें, then you just have to read the point of intersection and the point of intersection will give you the final solution।
Okay, so the method is very simple. You just have to plot both the equations onto the same IV plane. Naturally, you need an access to a computer program like Octave. So इस point of intersection जो आपका solution है इसको हम Q point भी कहते हैं या DC operating point भी कहते हैं. So Q point is just the value of DC VD and DC ID of the diode. So इसी मेथड को अप्लाई करके देखते हैं यूजिंग specific values of R and VDD. So this is the same circuit as before. वही सेम सर्किट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. So इसकी अगेन हम रेडिली निकाल सकते हैं सर्किट इक्वेशन भी और डायोड इक्वेशन भी. So by Ohm's law, this node voltage is VDD and VDD is given as 5 volts. So this node voltage is 5 volt and this node voltage is VD. So by Ohm's law you can see that ID is equal to VDD minus VD divided by R की value 1 k given है. So this is your circuit equation. So we have the circuit equation. The diode equation is ID is equal to IS exponential of VD by VT. सो टेम्परेचर की यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम में उसने कोई बात नहीं की टेम्परेचर के बारे में. सो वी विल एज्यूम रूम टेम्परेचर. सो रूम टेम्परेचर विच इम्प्लाइज VT मस्ट बी इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट्स. सो इन रिलेशन में आप देख सकते हैं VD और ID अननोन है. आइए जी इस सर्किट के ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं. तो ये नोड वोल्टेज आप देख सकते हैं 5 वोल्ट है. ये नोड वोल्टेज VD है. सर्किट इक्वेशन इज ID इज इक्वल टू 5 माइनस VD डिवाइडेड बाय R is 1K. Diode equation is ID is equal to IS exponential of VD divided by VT. And since there is nothing mentioned here regarding the temperature, so we are going to assume room temperature, which means VT must be equal to 25 millivolts. इस रिलेशन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें देखिए जरा इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है. assume that the diode has a current of 1 milliampere at a voltage of 0.7 volt. क्या इसका ये मतलब है कि इस वक्त डायोड का करंट 1 milliampere है और वोल्टेज 0.7 वोल्ट है. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मींस? जी एनी आइडिया? So it is the value of IS. हाँ इधर से हम IS निकाल सकते हैं लेकिन इसका इस वक्त ये जस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि दिस इज सम पॉइंट ऑन द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड एंड इट इज जस्ट सेइंग कि if voltage across the diode is 0.7 then the corresponding current will be 1 milliampere and that's it. So this statement is just telling us कि जो given diode है उसका ये एक particular point है IV plane के ऊपर. So this is just giving us information that if the current through the diode is 1 milliampere then the corresponding voltage is 0.7 volt. ये स्टेटमेंट हमें हरगिज ये नहीं कह रही कि इस वक्त डायोड का करंट 1 मिली एम्पेयर है या डायोड की वोल्टेज 0.7 वोल्ट है. लेकिन दिस रिलेशन कैन बी यूज टू डिटरमिन IS. इस इक्वेशन में डायोड की इक्वेशन में अगर आप 1 मिली एम्प पुट करें IS एक्सपोनेंशियल ऑफ यहाँ पर VD को 0.7 पुट करें क्योंकि स्टेटमेंट हमें बता रही है कि अगर डायोड के थ्रू करंट 1 मिली एम्पेयर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट्स होगी. तो यहाँ से हम IS की वैल्यू निकाल सकते हैं. So IS is 1 milli divided by exponential of 0.7 divided by 25 milli. So once we have the value of IS, we have this circuit equation, we have this diode equation, we can plot them on the same IV plane using Octave or MATLAB and we will have the solution. So we have the value of IS as
1 milli divided by exponential of 0.7 divided by 25 millivolt, and the value of IS is 6.9144 into 10 raised to power minus 16. We have the circuit, we have the diode equation, we have the circuit equation. So इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो डायोड इक्वेशन आपके पास बन गई ID इज इक्वल टू, यहाँ पर IS की वैल्यू हमने पुट कर दी, VT की वैल्यू पुट कर दी, सर्किट इक्वेशन में हमने VDD की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट कर दी 5 वोल्ट्स, R की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट कर दी 1K. So let's now plot these two equations on the same IV plane. तो इसको प्लॉट करके देख लेते हैं अब. तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास VD है और डिपेंडेंट वेरिएबल लेट से ID है. सो लेट मी डिफाइन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या रेंज रखी जाए, आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई यहाँ पर जो अवेलेबल है वो 5 वोल्ट है. सो 5 वोल्ट से ऊपर तो VD, वैसे तो VD 0.7 की विसिनिटी में रहना है, सो उसे आप कम रेंज में भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल लेट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हियर लेट मी प्लॉट इट. इसकी रेंज मैंने 0 से 5 तक रख दी और इंक्रीमेंट 0.0001 रख दिया ताकि मुझे एक फाइन रेजोल्यूशन मिले. सो प्लॉट कर देते हैं इसको. प्लॉट VD कॉमा, लेट्स प्लॉट द सर्किट इक्वेशन फर्स्ट. सर्किट इक्वेशन इज 5 minus VD divided by 1K. Let me plot it in red color. So I have this plot here, right? So ये मेरे पास एक प्लॉट आ गया. सो ये स्ट्रेट लाइन है, वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन है, और इसका वाई इंटरसेप्ट पॉइंट जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि VDD डिवाइडेड बाय R होगा. सो 5 डिवाइडेड बाय 1K इज 0.005. अब हम डायोड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं. सो होल्ड ऑन मीन्स के पिछले प्लॉट को वो वहाँ पर ही रहने दें और उसके ऊपर नया प्लॉट भी कर दे, पिछले प्लॉट को रिप्लेस ना करें. सो लेट्स प्लॉट VD कॉमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं IS 6.9144 E माइनस 16. ये जो E वाला फॉर्मेट है ये मैटलैब में शॉर्ट हैंड नोटेशन है इस तरह लिखने की, इंटू 10 raised to power minus 16 को लिखने की. दिस E इज नॉट एक्सपोनेंशियल, दिस मीन्स 6.9144 इंटू 10 raised to power minus 16 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल के लिए EXP आप यूज करेंगे, VD डिवाइडेड बाय 25 milli. Let's plot this in blue color, let's say. So अब आप देख सकते हैं कि उसने एक वार्निंग दी है. उसकी वजह ये है कि ये एक्सपोनेंशियल में जब आप VD को 5 वोल्ट ले रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर. So the number gets too huge. Let's constrain it to some reasonable value. So for that purpose we are going to use the axis command. So axis command में पहले आप horizontal axis दे देंगे. हॉरिजॉन्टल एक्सेस में कहाँ से कहाँ तक देखना चाह रहे हैं, लेट्स से हम 0 से 5 वोल्ट तक देखना चाह रहे हैं. फिर वर्टिकल एक्सेस में लेट्स से हम 0 से 100 मिली एम्पेयर तक देखना चाह रहे हैं. सो एक्सेस की कमांड में पहले आपने एक्स मिन देना है, एक्स मैक्स देना है, फिर वाई मिन देना है और फिर आपने वाई मैक्स देना है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ के सोल्यूशन है. सो टू हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट द सोल्यूशन इज, हम इसको मज़ीद जूम इन कर सकते हैं. जूम इन के लिए अगेन यू कैन यूज़ द एक्सिस कमांड. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0.02. So here we have a blue curve जो है, you can see this blue curve is basically the diode equation, and this red is, the red straight line is the circuit equation. So इस पॉइंट को एग्जैक्टली आप रीड कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फिगर ओपन हुई है इसके यहाँ पर, जहाँ पर मैं माउस कर्सर लेकर जा रहा हूँ वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर वो रीड कर रहा है. अब इसलिए अगर मैं इसी तरह इतनी दूर से देख के करूँगा, इसको जूम इन नहीं करूँगा और यहाँ से करूँगा, तो आई विल नॉट गेट अ बेटर रीड ऑफ द एग्जैक्ट वोल्टेज एंड करंट. तो इट्स बेटर कि मैं इसको जूम इन कर लूँ यूजिंग इधर एक्सिस कमांड और दिस जूम बटन, एंड देन गो देयर एंड रीड द वैल्यू. सो लोअर एंड पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपको बता रहा है 0.73595 वोल्ट्स, एंड करंट जो है वो एम्पेयर्स में बता रहा है 0.00
4.2639 amperes, or in other words 4.2639 milliamperes. So I can have a better estimate by further zooming in. So further zoom in करके मैं मज़ीद better estimate इसका better इसको read कर सकता हूँ। जी ये ठीक है। सो ये बेसिकली आपका तरीकाकार है सॉल्विंग द डायोड प्रॉब्लम यूजिंग एक्सपोनेंशियल मॉडल विद ग्राफिकल एनालिसिस। यू जस्ट हैव टू प्लॉट द टू इक्वेशंस ऑन टू द सेम IV प्लेन। सो इन दोनों इक्वेशंस को आपने प्लॉट कर दिया। सो प्लॉटिंग दीज टू इक्वेशंस, the diode equation and the circuit equation onto the same IV plane, we will get the solution by reading the value at this point. तो ये जो point of intersection है इसको आपने read out करना है। So once आप इसको read out करेंगे तो you will get VD is equal to 0.7358 volt and ID is equal to 4.264 milliamperes. So it's very important कि आप इसको zoom in करें पहले और फिर read करें, अदरवाइज आप उसे एक्यूरेटली रीड नहीं करेंगे। आपका सोल्यूशन तो एक्यूरेट होगा लेकिन आप रीडिंग में एरर कर लेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको जूम इन करें और फिर इसको रीड करें। तो इस प्रॉब्लम को आपने खुद भी ट्राई करना है ताकि ये चीज़ फर्दर क्लियर हो जाए। जी एनी क्वेश्चंस इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस? ये क्लियर है ग्राफिकल एनालिसिस? हाँ जी, इसमें है कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको आप आइटरेटिव एनालिसिस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस के लिए यू नीड एन एक्सेस टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम like MATLAB. However, if you just have a calculator available, how can you solve the exponential model? So अगर आपको just calculator available और paper and pencil available है तो then you can solve the problem using iterative analysis. So iterative analysis भी again exponential model के बाद ही आप use करते हैं। So again you need two equations, one the circuit equation and the other one the diode equation. डायोड इक्वेशन की आप इधर ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। रिकॉल करें दोनों सेम इक्वेशन की टू फॉर्म्स हैं। सो ये भी डायोड इक्वेशन नहीं है, ये भी वही डायोड इक्वेशन है, जस्ट उसकी थोड़ी सी फॉर्म डिफरेंट है। यहाँ पर आपको IS की ज़रूरत नहीं है। एंड यू हैव द सर्किट इक्वेशन जो कि इस पर्टिकुलर केस में ये थी, ठीक है। ये कोई जेनेरिक नहीं है, हर सर्किट के लिए डिफरेंट आनी है। इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जिसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं और वही सेम एग्जांपल हम आइटरेटिवली भी अभी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द सर्किट इक्वेशन। सो लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग द आइटरेटिव प्रोसीजर। So we are using the same example, we are taking the same example here. So that means the diode equation is, let's use this form now. V2 minus V1 is Vt, natural log of I2 by I1. And the circuit equation for this particular circuit, जो कि हमने ohms law से निकाल सकते हैं या आप KVL से निकाल सकते हैं, is ID is equal to VDD minus VD divided by R. सो अब हमने आइटरेटिवली चलना है। सो आइटरेटिव प्रोसीजर्स में ये होता है कि यू स्टार्ट विद एन एस्टिमेट एंड देन यू रिफाइन दैट एस्टिमेट ओवर आइट्रेशंस। सो मल्टीपल आइट्रेशंस आप करती हैं और हर आइट्रेशन में अपने एस्टिमेट को रिफाइन करते जाते हैं। और जब दो आइट्रेशंस के बीच में VD और ID की वैल्यू नहीं चेंज हो रही होगी देन वी विल से दैट द प्रॉब्लम हैज़ कन्वर्ज्ड एंड वी डोंट हैव टू डू एनी मोर एनालिसिस। सो इस किस्म की प्रॉब्लम्स में यू विल इंश्योर 3 डेसिमल एक्यूरेसी for the voltage in volts and current in milliamperes. So current आप milliamperes में कंप्यूट कर रहे होंगे, आप वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में कंप्यूट कर रहे होंगे और आपने 3 डेसिमल एक्यूरेसी बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योर करनी है। अगर आपको कहा जाए कि ज़्यादा डेसिमल एक्यूरेसी करें तो फिर आपको मज़ीद आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड यू मे हैव टू डू मोर आइट्रेशंस। सो लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 3 डेसिमल एक्यूरेसी। सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो ये जो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। या फिर अगर आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई होगी प्रॉब्लम में, जस्ट IS दिया होगा तो भी स्टिल
VD इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि रिकॉल करें कि इस डायोड के केस में VD विल बी इन द रेंज ऑफ 0.6 to 0.8 वोल्ट टिपिकली. दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट. ठीक है, ये स्मॉल सिग्नल डायोड्स के लिए ठीक है. लार्ज सिग्नल डायोड्स में हम देखेंगे कि उसमें ये टिपिकली ज़्यादा होता है, जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये लेके चल रहे हैं. So 0.7 volt इसकी mean value है. So 0.7 volt is a good starting point. So let's start with VD is equal to 0.7 volt. So iteration 1 में आप क्या करेंगे, ये information आपके पास iteration 1 से पहले पहले available है. उसके अलावा आपको एक initial point भी available है कि V1 जो है वो 0.7 volt होता है if I1 is equal to 1 milliampere. ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये वाली स्टेटमेंट. करंट 1 milliamp at a voltage of 0.7 volts. So this is the information that you have prior to iteration 1. So let's now start iteration 1. So iteration 1 में आपने पहला स्टेप क्या करना है? The first step is to use the circuit equation. So circuit equation आपके पास क्या है? Circuit equation आपके पास है ID is equal to VDD यानी 5 minus VD divided by R which is 1K. VD की क्या वैल्यू यूज की जाए यहाँ पर? अब देखें, प्रायर टू दिस आइट्रेशन आपने ये एक वैल्यू सोची है कि दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर 5 minus 0.7 divided by 1K to get a better estimate for this ID. So इस ID का हम एक better estimate निकालना चाह रहे हैं 4.3 मिली एम्पेयर. सो ऑब्वियसली ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें शुरू में पता नहीं था, ये जस्ट हमने एक स्टार्ट में एक वैल्यू ले ली. वो हमने एक रीजनेबल वैल्यू ली है कि वो उसी रेंज में है जिसमें एक्सपेक्टेड आंसर है, लेकिन दिस इज जस्ट एन इनिशियल गैस, ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है. सो आपने लेकिन पहला स्टेप आपने ये किया कि इस वैल्यू को यूज़ करके आपने थोड़ा रिफाइन कर लिया और ID निकाल लिया यूजिंग द सर्किट इक्वेशन. यूजिंग द सर्किट इक्वेशन और KVL हेयर हमने ID निकाल लिया 4.3 मिली एम्पेयर्स. नेक्स्ट वी विल यूज द डायोड इक्वेशन टू गेट अ बेटर एस्टिमेट फॉर VD. ठीक है, हम डायोड इक्वेशन यूज करेंगे टू गेट अ बेटर एस्टिमेट फॉर VD. सो डायोड इक्वेशन आपके पास है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस VT नेचुरल लॉग ऑफ I2 डिवाइडेड बाय I1. जी एनी आइडिया यहाँ पर V1 I1 क्या यूज करें और I2 क्या यूज करें? यार ये माइक अगर आपने बात नहीं करनी तो इसको म्यूट ही रखें, क्या ख्याल है? जी मुदस्सिर अली, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर हम I2 वो वैल्यू यूज करेंगे जो करंट आइट्रेशन में हमने कंप्यूटेशन की है. सो I2 विल बी यूज्ड एज 4.3 मिली एम्पेयर्स. V1 I1 हम वो वैल्यूज यूज करेंगे जो कि इस आइट्रेशन से पहले हमें मिली थी, जो कि यहाँ पर आप रिकॉल करें तो हमें एक गिवन है V1 I1 इज इक्वल टू 0.7, 1 मिली एम्प. सो लेट्स यूज V1 I1 एज दिस. बाकी अगली आइट्रेशंस में हम V1 I1 यूज करेंगे जो प्रायर आइट्रेशन का रिजल्ट होगा, लेकिन आइट्रेशन 1 के लिए V1 I1 हम यूज कर रहे हैं जो कि इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है. सो दैट मीन्स कि V2 इज इक्वल टू V1 इज 0.7 हमने यूज की है. VT इज 25 मिली, क्योंकि टेम्परेचर की कोई बात नहीं की गई. नेचुरल लॉग ऑफ I2 इज 4.3 मिली, जो कि I2 इज जो कि हमने करंट का एस्टिमेट निकाला है करंट आइट्रेशन में, इसी आइट्रेशन 1 में, divided by I1 is 1 milli. So using this relation, we will get a new better estimate for the voltage. So इसमें जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो you will get V2 is equal to 0.736 volt. So at the end of iteration 1, we have ID is equal to 4.3 milliampere and VD is equal to 0.736 volt. So थोड़ा सा हमने refine कर लिया. Using the circuit equation and the diode equation, we have refined the value. VD is equal to 0.736 volt and ID is equal to 4.3 milliampere are the results of iteration 1. अब iteration 2 के लिए
हम आइट्रेशन 1 के रिजल्ट को एज प्रायर वैल्यूज यूज करेंगे और उनकी बेसिस पे बिल्ड करेंगे। तो आइट्रेशन 1 का रिजल्ट आपके पास आया है Vd इज इक्वल टू 0.736 वोल्ट एंड Id इज इक्वल टू 4.3 मिली एम्पेयर्स। अब इस इनिशियल वैल्यूज को आप यूज करेंगे और उनके बेसिस पे बेटर एस्टिमेट निकालेंगे। सो पहले आप सर्किट इक्वेशन को यूज करेंगे और सर्किट इक्वेशन में Vd की वैल्यू ये यूज करेंगे जो कि आइट्रेशन 1 का रिजल्ट था। So ID is equal to 5 minus VD divided by 1K। तो यहाँ पर VD आप जो आइट्रेशन 1 का रिजल्ट था वो आप यहाँ पर VD के तौर पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यू विल गेट ID is equal to 4.264 मिली एम्पेयर्स। फिर आप डायोड इक्वेशन यूज करेंगे और डायोड इक्वेशन में V1 I1 आप ये वैल्यूज यूज करेंगे। So V1 I1 are the values prior to iteration 2. So V1 is equal to 0.736 volt and ID is equal to 4.3 milliamperes will be utilized here. I2 is the current iteration value. So V1 I1 are the values prior to iteration 2 and I2 is the current iteration value. So I2 4.264 milliamperes use करेंगे, V1 0.736, I1 4.3 milli. सो ये अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो यू विल गेट अ बेटर एस्टिमेट फॉर Vd एंड सिंस हम 3 डेसिमल एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.736 वोल्ट। सो एट द एंड ऑफ आइट्रेशन 2 we have Vd is equal to 0.736 volt and Id is equal to 4.264 milliamperes। अब आइट्रेशन 3 में आप क्या करेंगे? Iteration 3 में again you will refine by using the circuit equation 5 minus Vd। तो Vd iteration 2 का रिजल्ट यूज किया जाएगा 0.736 divided by 1K, so 4.264 milliamperes आ गया। Then you will use the diode equation V2 is equal to V1 plus Vt natural log of I2 by I1। V1 जो है आप iteration 2 का रिजल्ट यूज करेंगे 0.736 प्लस Vt is 25 मिली नेचुरल लॉग ऑफ I2 अब करंट आइट्रेशन में जो आपने कंप्यूटेशन की है करंट की, सो 4.264 मिली। I1 जो आपने प्रायर आइट्रेशन में रिजल्ट निकाला था 4.264 मिली। सो इट इज अगेन इक्वल टू 0.736 वोल्ट। तो अब ये आप देख सकते हैं कि आइट्रेशन 3 के जो रिजल्ट्स हैं they are exactly the same as the results of iteration 2. So when there is no change of results in the two iterations, then we can conclude that the problem has converged. अगर आप यहाँ पर 3 डेसिमल एक्यूरेसी के बजाय लेट से 4 डेसिमल एक्यूरेसी रखते तो आपको मजीद आइट्रेशंस करनी पड़ती। सो प्रॉब्लम हैज कन्वर्ज्ड फॉर 3 डेसिमल एक्यूरेसी। तो ये आपके पास तरीका है जहाँ पर आप आइट्रेटिवली मल्टीपल आइट्रेशंस करके फाइनल सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं एंड व्हेन यू रीच एट द फाइनल सोल्यूशन यू विल सी कि उसके बाद आप जितनी भी आइट्रेशंस करते रहेंगे द रिजल्ट्स विल नॉट चेंज। So when the results do not change between two iterations for a certain given decimal accuracy, you can conclude that the problem has converged and you have reached the final solution. So for this example, for 3 decimal accuracy, the final solution is Vd is equal to 0.736 volts and Id is equal to 4.264 milliamperes। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो तरीके थे एक्सपोनेंशियल मॉडल को यूज करके सॉल्व करने के। सो एक्सपोनेंशियल मॉडल विद ग्राफिकल एनालिसिस, यू कैन यूज एक्सपोनेंशियल मॉडल। सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ यार, आपका क्वेश्चन है या फिर से आपने ऐसे ही माइक जी? यार आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बात समझ आ रही कि आपने माइक म्यूट रखना है अगर आपने बात नहीं करनी। जी रुबेब भट्टी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, जब आपका क्वेश्चन हो तब आप माइक अनम्यूट करें और फिर अपना क्वेश्चन करें, अदरवाइज ना करें।
जी ये मेथड क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन इन दिस? सो आप देख सकते हैं जो आइटरेटिव एनालिसिस का रिजल्ट आपके पास आया है, इट एग्जैक्टली मैचेस टू द ग्राफिकल एनालिसिस सॉल्यूशन टू 3 डेसिमल एक्यूरेसी। सो 3 डेसिमल एक्यूरेसी तक ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है। जी एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सपोनेंशियल मॉडल? ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आपका है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। सो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल इज द सिंपलेस्ट। एक्चुअली आइडियल डायोड मॉडल इससे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आइडियल डायोड मॉडल हम टिपिकली यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट हैं। सो आइडियल डायोड मॉडल इज ओनली यूज्ड व्हेन वी वांट टू understand some new concept, some new circuit, and we want to see how it works very quickly। जिस तरह से हमने स्टार्ट में किया था कि हम चाह रहे थे कि क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं डायोड से, तो उसके लिए हमने आइडियल डायोड मॉडल को यूटिलाइज कर लिया। Constant voltage drop model is usually used when you need quick analysis, and exponential model is used when you need accurate analysis. So constant voltage drop model is the most widely used model when you are interested in quick analysis of circuits, and is based on the observation that the voltage drop of a conducting diode or a forward biased diode lies in a narrow range of 0.6 to 0.8 volt। सो एक्चुअल आई वी कैरेक्टरिस्टिक तो आपका इस किस्म का है, एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका मॉडल किससे कह रहे हैं? इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से एट 0.7 वोल्ट हम इसको मॉडल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल है, एंड इट विल लूज एक्यूरेसी, बट इट विल लीड टू, इसका बेनिफिट ये है कि इट विल लीड टू वेरी क्विक रिजल्ट्स। सो वट वी आर इम्पोजिंग हेयर इज वी आर सेइंग कि वी डी इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। सो डायोड को हम इस किस्म के वोल्टेज सोर्स ऑफ 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देते हैं इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। So if the diode is forward biased, if I is greater than 0, then we set VD equal to 0.7 volts। So VD को 0.7 वोल्ट सेट कर देंगे और इस तरीके से आप एनालिसिस कर लेंगे। सो द मॉडल assumes a constant value of 0.7 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। आप इस एक्चुअल एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से मॉडल कर रही हैं एक सिंपल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से जो कि 0.7 पे लोकेट कर रही है। सो सेम इसी प्रॉब्लम को इससे भी कर लेते हैं यूजिंग कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। जी ज़रा बताइए क्या होगा इस केस में वीडी और आईडी यूजिंग द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल? जी हाँ जी, वीडी क्या क्या होना चाहिए इसमें कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो? हाँ जी, कोई नहीं इसमें आंसर दे सकता। जी ये देखिए, बाय डेफिनेशन हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में यू विल सेट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एज 0.7 volts। सो देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वीडी हियर? जी ये वीडी क्या होना चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो? हाँ जी, आप लोग मौजूद हैं यार, इधर ही हैं या बस चले गए हैं?
So constant voltage drop model means that VD is equal to 0.7 volts. So VD यहाँ पर 0.7 volt आपने रख दिया, and that means ID must be equal to 5 minus VD divided by 1K or 4.3 milliamperes. So आप देख सकते हैं कि it's very straightforward to analyze this circuit using constant voltage drop model, because constant voltage drop model का मतलब ये है कि if the diode is forward biased, you just replace it with the voltage source of 0.7 volt and perform the analysis. So VD is equal to 0.7 volt आ जाता है आपके पास, और ID जो है आपके पास वो 4.3 milliamperes आ जाता है. So in comparison to the graphical analysis solution, you can see that कि आपने यहाँ पर accuracy पे compromise की है. Actual solution आपके पास ये था, और आप कह रहे हैं कि this is a solution that you have obtained using constant voltage drop model. So obviously you have lost accuracy here, but what you have achieved, जो benefit इसका ये है कि you are able to perform analysis very quickly. So analysis आपने बहुत quickly कर ली है, लेकिन आपने accuracy जो है आपने यहाँ पर lose की है. नेक्स्ट आपका आइडियल डायोड मॉडल है, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में. सो आइडियल डायोड मॉडल इज ओनली यूज्ड व्हेन आप जब कंसेप्चुअली किसी न्यू सर्किट को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो तब आइडियल डायोड मॉडल यूजफुल है. अदरवाइज फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस यू विल मेक यूज ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन क्विक एनालिसिस, and when you want very accurate analysis you are going to use exponential model. So constant voltage drop model is the preferred option for quick analysis rather than using ideal diode model, and for accurate analysis you will make use of exponential model. So but still for the sake of completeness हम ideal diode model से भी इसको solve कर लेते हैं. So ideal diode model क्या कहता है कि VD, if the diode is forward biased, then VD is equal to 0 volt, which means by Ohm's law here ID will be equal to 5 minus 0 divided by 1K or 5 milliamperes. तो अब आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एफर्ट जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में आपने जितना काम किया था, उसको अगर आप कंपेयर करें आइडियल डायोड मॉडल की वर्किंग के साथ, तो आइडियल डायोड मॉडल डज नॉट गिव यू एनी एडिशनल बेनिफिट हेयर. उतने ही क्विकली आप कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से भी एनालिसिस कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट्स हैं. सो ये कंपेयर करें, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल मॉडल के रिजल्ट्स हैं. एक्सपोनेंशियल मॉडल, the first one is exponential model using graphical analysis, the second one is exponential model using iterative analysis, then this is constant voltage drop model, and this one is ideal diode model. तो आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में ठीक है आपने एक्यूरेसी लूज की है, बट स्टिल थोड़े से करीब रिजल्ट्स हैं. सो 0.736 एक्चुअल रिजल्ट था, तो 0.7 आप कह रहे हैं. आईडी एक्चुअल जो है 4.264 मिली एम्पेयर था, तो आप 4.3 मिली एम्पेयर्स कह रहे हैं. सो स्टिल द रिजल्ट्स आर रीजनेबल. जब आप आइडियल डायोड के साथ कंपेयर करें तो यू कैन सी दैट के आइडियल डायोड रिजल्ट्स आर मच अवे फ्रॉम द एक्चुअल रिजल्ट्स. तो एक्चुअल रिजल्ट है 0.736 वोल्ट, और आइडियल डायोड मॉडल आपको कह रहा है कि वो 0 वोल्ट है. एक्चुअल करंट है 4.264 मिली एम्पेयर. सो आइडियल डायोड मॉडल आपको बता रहा है कि वो 5 मिली एम्पेयर है. सो आइडियल डायोड मॉडल के केस में बहुत ज़्यादा एरर है. रिलेटिवली कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में काफ़ी कम एरर है, और इन टर्म्स ऑफ एफर्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में और आइडियल डायोड मॉडल में. So in conclusion, we are going to use constant voltage drop model whenever we need quick analysis. So for quick analysis, we will use constant voltage drop model, and for exact analysis, for accurate analysis, we will use this exponential model. तो इस तरह आप pick and choose करेंगे, and depending on what the requirement is, we will use exponential model or constant voltage drop model. आइडियल डायोड मॉडल हम यूजुअली नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ उस केसेस में यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें कोई नया कॉन्सेप्ट है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है. ठीक है जी, अभी ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं.